ये वाली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी को भी फॉरगिव करने के लिए एक इंसान को मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ समवन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इमोशनली और मेंटली टू से सॉरी or to pardon someone, and if you force that particular person to do so, so it is not going to give him any good. It will certainly have a extraordinary type of stress which will create some type of mental problem for him or her. तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हमें फॉरगिवनेस करने से पहले ज़बरदस्ती फॉरगिवनेस नहीं करानी चाहिए. चीज़ों को टॉक आउट करके, कम्युनिकेट करके पहले उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए. उसको बातचीत करके एक समस्या को किसी एक लेवल पर लाना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर फॉरगिविंग वी मस्ट हैव द कम्युनिकेशन. हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए. इसके लिए आई विल गिव एग्जाम्पल. तो उसमें क्या होता है कि वेन एवर माई डॉटर डज समथिंग रॉन्ग, सो I just have a stern face, so she understand कि okay mama is angry with me, so she says sorry mama. तो but I always say कि बेटा only say sorry if you feel you have done something wrong, otherwise don't say sorry. So there are times when she says कि yeah mama it was my fault, that is why I am saying sorry, now I won't do it again. But there are times when she says कि okay yes I am saying sorry because you are angry with me and I don't want that you should be angry with me, that is why I am saying sorry. But mama it was not my mistake, it was your mistake, or it was the thing was done like that is why I did so. चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी इसलिए मैंने की थी और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. एंड यू आर एंग्री विद मी जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग स्ट्रेस, कि आपको किसी और बात की वजह से गुस्सा आ रहा है और इसकी वजह से आप मेरे से गुस्सा कर रहे हो. तो I just understand कि okay this is the situation, it is the exactly the position, and then I say well it's okay. So उससे क्या हुआ कि she was given a chance to have her say, so it made her mind clear कि okay मम्मा ने मेरी बात सुन ली. अब if I had not given her this chance, so these things go deep in the mind somewhere and she will make an image कि okay my mama is a dictator or my mama doesn't listen to me ever. वो अपनी चलाती हैं, she is always willful, she does not listen to me, she will do whatever she likes and whether it is my mistake or not I have to say sorry, she won't understand me. So this type of mentality and feelings are just created and they become a thought form. वो एक थॉट फॉर्म बन जाती हैं. वो एक तरह का, ये समझिए अगर हम शब्दों में कहें, एक तरह का वो डेमन बन जाती हैं. एक राक्षस जब भी वो कभी मुझसे बात करेगी आगे चल के बड़ी होके, तो फर्स्ट प्रेजुडिस शी विल बी हैविंग कि आई एम टॉकिंग टू हर बट आई डोंट थिंक शी इज़ गोइंग टू लिसन टू मी बिकॉज शी इज़ ऑलवेज हैविंग हर से, शी डोंट लिसन टू मी. Okay, so this type of prejudice is a type of demon which will create a wall between the relationship of a mother and a daughter. So same thing goes in every relationship, whether it is boss and employee, whether it is two friends, husband wife, or anybody. So first of all, until we communicate, until we give the chance to explain and clear the things, we should not just stop the things कि okay sorry, no, नेवर डू सो. क्योंकि आपने समवन सेड सॉरी एंड यू थॉट कि ओके शी वॉज एट फॉल्ट, ही वॉज एट फॉल्ट, ही हैड टू से सॉरी. नो, इट जस्ट ट्राई टू रीच आउट कि वेदर it is heartfelt sorry or it is just saying to make peace at home or peace at relationship, कि ये केवल रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए सॉरी हो रही है या एग्जैक्टली दैट पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दैट. क्योंकि अगर केवल अभी की शांति है तो दैट इज़ ओनली अ टेम्पररी शांति. This is temporary peace and the things are going on simmering and after a particular period of time some big event will happen and then there will be a burst out like a volcano. एक ज्वालामुखी फटेगा, आप कहेंगे oh it was a simple thing but you bursted out like that, why it was so. So she won't know, you won't know, but the reason is the things were piling up one by one and suddenly that limit crossed and only the smallest trigger
कि यू लेफ्ट द वेट टॉवल ऑन द बेड, कि आपने बिस्तर पे गीली टॉवल छोड़ दी। इस पे आपकी बीवी इतना कलेश कर सकती है जितना कि वो आपकी बड़ी बड़ी गलतियों पे नहीं कर रही है। तो इट इज़ नॉट द रीज़न कि शी बस्टेड आउट बिकॉज यू लेफ्ट द वेट टॉवल ऑन द बेड, but it was so many things of the past that on this little trigger she lost her patience and reacted like that. So first thing is that we must have to develop a patience to listen other, and we must have at least this much of understanding कि हमको दूसरे की बात को कहने का मौका दें, इतना हम कह सकें। आवर ईगो गेट्स सो लार्ज, यू नो, हम लोगों का जो ईगो है वो इतना बढ़ जाता है कि वी डोंट फील कि यस प्लीज़ स्पीक आउट योर माइंड। इतना कहने में भी कि चलो अपनी बात तो बताओ, बात क्या थी, इतना कहने में भी वी फील इंसल्टेड कि वाई शुड आई आस्क हर। No, I won't ask her. It is her mind, and I don't have to do anything with her views. I have my own views, and this is my view, and this is the right view. That's all. So the first thing is that कि we have to restrict our ego. We should control our ego, and we should feel the same for the other कि दूसरे का भी तो ego है। अगर आपका ego है तो you can just cares others ego, only then your ego will be cares. अगर आप दूसरे के ईगो को, घमंड को थोड़ा सा सहलाएंगे या प्यार से ट्रीट करेंगे, तभी आपके ईगो को भी प्यार से कोई ट्रीट करेगा। सो इफ़ यू वांट कि समवन एल्स शुड अंडरस्टैंड यू, सो फर्स्ट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम और हर, बिकॉज बेसिकली वाई शुड वी डू फर्स्ट, क्योंकि फॉर अस, फॉर एवरी वन ऑफ अस, वी आर द स्मार्टेस्ट, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, वी आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट। जब हम ये मानते हैं हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो जब हम अच्छे हैं सबसे ज़्यादा और हम ही सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो इट इज़ ओनली द ड्यूटी ऑफ द बेस्ट वन टू टेक द इनिशिएटिव. So it is up to us. Otherwise you should realize कि okay, I am not the best, so I can't do this. So accept this fact, and the moment you accept this fact that you are not the best, so automatically your ego comes down and you will immediately understand कि जब मैं best नहीं हूँ तो it is quite possible that in this case it is my mistake rather than hers, या ये उनकी मिस्टेक हो सकती है, मेरी मिस्टेक है, उनकी नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग आई थिंक कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमें सबसे पहले कोशिश करनी ये है कि हम ये माने कि हम दुनिया में जो कुछ भी चाहते हैं वो पहले हमें देना शुरू करना पड़ेगा। The first thing is that कि whatever we want in our life, we have to give it first ourselves. So the time we start giving, we start receiving. So first and foremost point about the solution of the anger is कि start understanding. एक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी. वी हैव टू थिंक ऑफ अदर्स एज यू योरसेल्फ आर. देयर इज़ अ गोल्डन रूल इन आवर प्राणिक हीलिंग कि डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट टू बी डन फॉर योर सेल्फ. दूसरों के संग वैसा करिए जैसा कि आप अपने साथ चाहते हैं. एंड देयर इज़ नेगेटिव रूल ऑल्सो द मास्टर हैज़ गिवन. ही सेज कि डोंट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डोंट वांट टू बी डन फॉर योर सेल्फ. दूसरों के संग वो मत करिए जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं. तो अगर ये दोनों ही रूल हम नेगेटिव पॉजिटिव अगर फॉलो करने लगेंगे तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हर कोई हमें अप्रिशिएट करे. सो यू हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएट अदर्स. इफ़ यू वांट कि आपकी बात को सुना जाए, समझा जाए, तो फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू others and try to understand कि what one can feel. And first of all ये सब हम कैसे कर सकते हैं? Do you know how can we understand others? It is the most difficult thing to understand others and it is the easiest thing to understand others. Why? कि आप दूसरों को तभी समझ सकते हैं जब आप खुद को समझ सकें. यानी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स नेचर लाइज इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. अगर आप अपने आप को समझते हैं तभी आप दूसरे को समझ सकते हैं. ये इस तरह से आप समझिए कि आपको ये पता है कि मुझे गुस्सा कब आता है. राइट. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द गोल्डन रूल्स कि दूसरों के संग हमें वही करना है जो हम अपने लिए चाहते हैं और दूसरों के संग वो बिल्कुल नहीं करना है जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं. सो अगर हम ये चीज़ समझ सकते हैं
तभी हम स्टार्ट करेंगे ये समझना कि व्हाट वी एग्जैक्टली वांट फॉर आवरसेल्व्स। अपनी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करने का जो मोस्ट ईजी कॉन्सेप्ट है, सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थिंग्स विच वी लाइक, व्हाट आर द थिंग्स विच वी डोंट लाइक एट ऑल। तो अगर हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या अच्छा लगता है, और तभी हम ये समझ सकते हैं दूसरे को क्या अच्छा लगता है। सपोज़ कीजिए आपको ये पसंद है कि हर कोई आपसे प्यार से बोले, तो जस्ट अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली कि सामने वाला भी ये चाहता है कि आप उससे प्यार से बोलो। यू वांट रेस्पेक्ट, सो जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि द अदर पर्सन इज़ आस्किंग फॉर द सेम, वो भी यही चाहता है। अगर आपको ये लगता है कि अगर मेरी कोई चीज़ यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखी जाएगी तो मुझे बुरा लगेगा, या मेरा सामान मैं यहाँ, ये लोग यहाँ रख देते हैं उठाकर, मैं ऑफिस से आता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, या मैं आती हूँ तो मुझे बुरा लगता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसी तरह से दूसरे को, वाइफ को भी बुरा लग सकता है कि जब आप आए या बच्चे आए तो उन्होंने सामान इधर से उधर फेंक दिया या डाल दिया। तो ये आप, होता क्या है जनरली कि अगर हस्बैंड गुस्सा करता है ऐसी किसी बात पे, तो वाइफ कहती है यार इतनी सी बात है, पता नहीं क्यों गुस्सा कर रहे हो। वाइफ करती है तो हस्बैंड कह देता है कि यार इतनी सी बात है, बिना बात के गुस्सा कर रही हो। तो या तो आप ये मान लीजिए कि आपको भी गुस्सा नहीं करना चाहिए उन सारी बातों पर, तभी वाइफ नहीं कर रही, या फिर आप ये एक्सेप्ट करें कि आपको भी ऐसी चीज़ों पर गुस्सा आता है, इसलिए उसका गुस्सा नेचुरल है। यहाँ बात क्या हो रही है, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि गुस्सा सही है या गलत है। बात यहाँ ये हो रही है कि इट इज़ बट नेचुरल। ये और हमारे इमोशंस की तरह से, जैसे कभी प्यार आ जाता है या हम खुश हो जाते हैं किसी बात पे, या दुख की बात पे रोने लगते हैं या दुखी हो जाते हैं, उसी तरह से पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस या घटनाक्रम होने पर सामने वाले को गुस्सा आना नेचुरल है। अगर हम ये चीज़ समझ सकते हैं तभी हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम सब लोगों का ये मानना है कि गुस्सा एक बुरी चीज़ है और गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रूल तो सभी पे फॉलो होता है, लेकिन शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमेशा ही ये करें कि गुस्सा आता ही नहीं हो। तो अगर हम इस चीज़ को एक नेचुरल आउटबर्स्ट के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो हमें दूसरे के गुस्से पे रिएक्शन देते हैं उस पर थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस आ जाती है। हम किसी भी चीज़ पे गलत रिएक्शन क्यों देते हैं? हम किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऑकवर्डली तब रिएक्ट करते हैं जब हम सोचते हैं दैट इज़ ए टैबू, कि ये एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने ये सुना कि एक मैरिड मैन का किसी दूसरी मैरिड लेडी से अफेयर चल रहा है, तो हम उसे जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो हम क्यों रिएक्ट करते हैं? क्या हम उस पर उसी तरह से रिएक्ट करते हैं जैसा हम इस बात पे करेंगे कि हमारे मोहल्ले की उस 18 साल की अनमैरिड लड़की का एक दूसरे साल के अनमैरिड 20 साल के लड़के से अफेयर चल रहा है? नो, अफेयर वाली बात दोनों जगह है, लेकिन दोनों जगह हमारे रिएक्शन में डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ को तो हम नेचुरल ले रहे हैं कि यार जवान लड़का है, जवान लड़की है, ये चीज़ें हो जाती हैं, और ये चीज़ कि एक मैरिड वूमेन का किसी दूसरे मैरिड मैन के संग अफेयर है, दैट इज़ समथिंग विच वी थिंक इज़ ए टैबू। दैट इज़ वाई वी रिएक्ट बहुत ही गलत है यार, शर्म नहीं आई उसको ऐसा करते हुए या सोचते हुए, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। तो ये क्या है, हमारे रिएक्शन का डिफरेंस का रीज़न क्या है कि फॉर वन थिंग वी टुक इट नेचुरली एंड द अदर थिंग वी टुक एज टैबू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंगर इज़ नॉट अ टैबू। जैसे लव टैबू नहीं है, केयर टैबू नहीं है, या और कोई चीज़ टैबू नहीं है, उसी तरह से एंगर भी एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसे हमें और इमोशंस की तरह से डील करना होगा, तभी हम धीरे धीरे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब हमारे मन से ये निकल जाता है कि गुस्सा करना गंदी बात नहीं है, तो जब हमारा बच्चा गुस्सा करेगा, बीवी या पति गुस्सा करेगा, या बॉस गुस्सा करेगा, तो हम सबसे पहले तो गुस्सा नहीं होंगे, बुरा फील नहीं करेंगे। क्योंकि हम बुरा फील कब करते हैं? जब कोई ऐसी चीज़ घटित होती है जिसे हम गलत समझते हैं। यानी कि हमें बुरा कभी भी क्यों लगता है? हमें बुरा तब लगता है जब हम किसी भी चीज़ को लाइफ में गलत समझ रहे होते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पे आके हम समझ जाते हैं कि ये बात गलत नहीं है,
तो हम बुरा फील नहीं करते हैं। इन द सेम वे अगर हम ये समझ लें कि कोई भी व्यक्ति अगर गुस्सा कर रहा है तो ये नेचुरल है और ये बुरी बात नहीं है, तो हम उसके गुस्से के समय जो रिएक्शन देंगे वो इतना गंदा नहीं होगा। सपोज़ करिए कि आपकी बीवी ने गुस्सा किया, तो आप ये सोचेंगे यार गुस्सा कर रही है लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नेचुरल सी बात है, थक गई होगी या ऐसा होगा या वैसा होगा। बॉस के लिए भी आप सोच सकते हैं कि क्या ये हमेशा मेरे संग ऐसे ही बदतमीज़ी से बोलते हैं या गुस्सा करते हैं? नहीं बोलते ना। आज मुझसे 1 महीने बाद उन्होंने इस तरह से बोला है, तो हो सकता है कोई अपनी पर्सनल स्ट्रेस रही हो या मेरी कोई गलती हो। तो इसी तरह से एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग ग्रो होने लगती है जब हम गुस्से को एक नेचुरल इमोशंस के रूप में लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट एंगर एज अ नेचुरल इमोशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और जैसे ये चीज़ होगी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे रिएक्शंस में रेडिकल चेंजेस आएंगे और वो इतने ख़राब नहीं होंगे कि सिचुएशन हमारे बीच में बिगड़े या ख़राब हो जाए। कि हम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि सॉरी कही जाए? दैट इज़ मेल ईगो और द ईगो ऑफ द पर्सन फेसिंग अस और इन फ्रंट ऑफ अस। दैट इज़ वाई वी नीड सॉरी ना। अब ये बताओ अच्छा ये बताइए, अगर ये वाली बात है इस तरह से कि सपोज़ करो कि मनन ने अभी कोई गलती की आपके बेटे ने और उसने आपको सॉरी बोल दिया, ठीक है। एक बात है कि उसने सॉरी बोला क्योंकि उसे ये रियलाइज़ था कि हाँ मैंने ये गलती करी है इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। एक ये है कि उसने इस डर से बोला कि अगर मैंने सॉरी नहीं की तो मेरी डांट पड़ेगी, या तीसरा उसने इस ज़बरदस्ती से बोला क्योंकि सारिका कंटिन्यूसली कह रही थी मनन सॉरी बोलो, पापा को सॉरी बोलो, आपने गलती की है सॉरी बोलो। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि, और एक चौथी सिचुएशन है वो सॉरी ही ना बोले, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सिचुएशन बेस्ट है? इसमें बेस्ट सिचुएशन ये है कि बच्चे को रियलाइज़ हो कि उसने गलती की है तब वो सॉरी बोले, या थोड़ा-सा ये बेटर है कि उसने डर से सॉरी बोले। लेकिन अगर वो किसी ज़बरदस्ती के कारण सॉरी बोल रहा है तो वो सबसे गलत बात है। और अगर उसे ये रियलाइज़ ही नहीं है कि उसने गलती की है तो मनीष इट डज़ नॉट मैटर कि आदमी आपके सामने आपके कान पकड़ के 10 उठक बैठक लगा ले, आपके पैर छू ले, बट दैट सॉरी डज़ नॉट मीन एट ऑल। क्योंकि तो इट मीन्स यू रियलाइज़ इमीडिएटली कि सामने वाले ने गलती तो रियलाइज़ कर ली है, लेकिन कमी ये है कि ये सॉरी करके मान नहीं रहा है या मान नहीं रही है, ठीक है, यही मतलब है आपका? हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 हाँ। कितनी अच्छी बात है मनीष, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन इट? अगर अब एक एक चीज़ समझो आप इस बात को, पता है हमारी एक भाभी थी, उनकी नई नई शादी हुई, तो क्या होता था जब हम उनके पास जाते थे तो हम कहते थे भाभी नमस्ते, तो वो कभी नमस्ते नहीं करती थी, वो सिर्फ मुस्कुराती थी। तो हमें ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी कि हम भाभी से इतनी बार नमस्ते करते हैं लेकिन वो कभी हमें नमस्ते नहीं करती, वो मुस्कुरा देती हैं। तो एक बार मैंने उन भाभी की जो ननद है उनसे कहा कि ऐसा है यार, हमें तो अच्छा नहीं लगता, भाभी को हम कितना भी नमस्ते करें भाभी नमस्ते का जवाब ही नहीं देती, वो सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। तो उन्होंने कहा कि यार क्या प्रॉब्लम है, वो मुस्कुरा देती हैं, ये उनका तरीका है विश करने का, और आप नमस्ते करते हो ये आपका तरीका है विश करने का, तो ये तो और अच्छी बात है कि उन्होंने मुस्कुरा दिया। तो इन द सेम वे अगर एक व्यक्ति ने गलती की और उसने रियलाइज़ कर ली, और इसका सिंबल ये आपको मालूम है कि इसका सिंबल ये है कि जब ये गलती रियलाइज़ करती या करता है तो ये चुप हो जाता है। सो इट इज़ a gesture which shows कि she has accepted her mistake. So you should have understanding enough, understand. Yes. But we are not international, we are personal there. We are personal there, not international. वहाँ हम तो वही नहीं, तो बात पर्सनली होनी चाहिए ना, जब पर्सनल बात है तो द थिंग शुड बी पर्सनल ओनली। सॉरी वाला वही मैं कह रही हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। यस। हाँ एक्चुअली दे डोंट नो कि 3 मैजिकल वर्ड इस दुनिया में बने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, थैंक यू, सॉरी और प्लीज़। अगर कोई भी बंदा लाइफ में इन 3 वर्ड्स का प्रॉपर यूज़ कर ले तो वो लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो वो करना चाहता है।
अब अगर इनमें से कोई भी फीमेल या कोई भी लेडी या कोई भी व्यक्ति इन 3 वर्ड्स का राइट यूज़ करके राइट टाइम पर इसका फ़ायदा नहीं उठा रहा है, तो यू विल सी कि दैट फेलो विल नॉट गेट व्हाट ही एग्जैक्टली वांट्स, क्योंकि उसको भी फिर उस समय सॉरी नहीं मिलेगी जब वो ये चाहेगा कि दूसरा जना मुझसे सॉरी कहे. सो दीज आर द जस्ट बिल्डिंग ऑफ कर्मा एंड दे विल गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन कर्मा. बट if you feel bad about it, about they are not saying sorry, so you are creating your own bad karma. Just let it go. मैं पहले तो आपसे 100% एग्री कर रही हूँ कि वी मस्ट से सॉरी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है और करा है, और इवन मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ. तो पहली चीज़ तो ये है कि सॉरी ज़रूर कही जानी चाहिए. सॉरी, प्लीज़ और थैंक यू आर द मैजिकल वर्ड्स. ठीक. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर सामने वाला सॉरी नहीं कर रहा है तो उस समय आप रहने दीजिए. बाद में आप उसको समझा सकते हैं कि यार जब तुम्हारी गलती थी, तुमने रियलाइज़ भी कर लिया था, तो तुम मुझसे सॉरी कह सकती थी. लेकिन अगर सामने वाला, आप ये जानते हैं कि उसकी एक टेंडेंसी है या ही हैज़ नॉट द करेज, बिकॉज यू नो सॉरी वही कह सकता है जो वो बहुत बहादुर हो. तो अगर सामने वाला इतना बहादुर नहीं है कि वो अपने सॉरी कह सके, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी बोल्ड इनफ. मैं ये जानती हूँ और मानती हूँ कि सॉरी कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत, जिसे कहना चाहिए ना, अपने अंदर गट्स होने चाहिए, तभी आप सॉरी बोल सकते हो सामने वाले को. यू नो, जब मैं मेरी कोई टीचर कुछ लेके आती थी, मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती थी, तो मैं उससे इमीडिएटली बीइंग ए चेयरपर्सन आई सेड सॉरी. एंड वहाँ पर एक ट्रेनर आते थे, तो उन्होंने ये चीज़ जब देखी फर्स्ट टाइम, तो ही सेड कि मैडम मैं कम से कम 10 स्कूलों में ट्रेनिंग कर चुका हूँ, लेकिन मैंने पहली चेयरपर्सन या बॉस ऐसी देखी है जो अपने ये इतने नॉर्मल से, इतने अपने उम्र से आधी एज की एम्प्लॉयज़ को, जो कि बिल्कुल नई हैं, उनको अपनी गलती पे सॉरी कह देती है. सो मैंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है सर, गलती मेरी थी, तो आई सेड सॉरी. सो वो कहे कि आपने एक सॉरी कह दिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता. तो आप ये मान के चलिए कि अपने आप की गलती सामने वाले के सामने एक्सेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है. मन में एक्सेप्ट कर लें, वही बहुत है. तभी मैंने कहा था कि फॉरगिवनेस के लिए ये ज़रूरी नहीं है सामने वाले को रीच आउट करके करो. आप ये चाहते थे कि फ़ोन पर मैसेज करके या कॉल करके कहा जाए, मैंने कहा वो ना करके मन में ही कह दो, तो शुरुआत तो हो. तो मनीष, फिज़िकली वो चीज़ तभी मैनिफेस्ट हो सकती है जब पहले इमोशनली, मेंटली हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं. जब तक वो इनर वर्ल्ड में हमारे अंदर मैनिफेस्ट नहीं होगी, तब तक उसे हम बाहर अगर ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट कराएंगे तो थिंग्स वोंट लीड टू द गुड रिजल्ट्स. सबसे पहले आप ये समझो, आप किसी को भी किसी भी काम करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते. आप ये समझो ना कि इसका चुप रहना ही सॉरी है मेरे लिए. हो सकता है वन डे शी विल रियलाइज़ कि ओके मुझे सॉरी कहना चाहिए था, मैंने नहीं कहा. लेकिन अगर वो नहीं भी रियलाइज़ करती है तो आप पे क्या फ़र्क पड़ा, अच्छा ये बताओ. बिकॉज आपकी ईगो हर्ट हो रही है कि यार गलती थी, इसने मान भी ली, लेकिन सॉरी कह देती तो क्या जाता. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ईगो, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टर्नेस. यू ऑलवेज सी कि जो आप कर रहे हो, आप जैसे चीज़ों को ले रहे हो, आपके संग उसी तरह से होगा. और जो दूसरा व्यक्ति है, चाहे वो आपका छोटे से छोटा बच्चा है या कितना भी आपका प्रिय व्यक्ति है, आप उसके कर्मा पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जो उसके संग होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा. सो आपके पार्ट पे ये हो सकता है कि आप अपने आप का मूड अच्छा रखो, जिससे कि घर के माहौल पे उस चीज़ का फ़र्क ना पड़े. तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो इस लेवल पर चीज़ों को लाने ही ना दे कि चीज़ इतनी ख़राब होगी, सॉरी तक की नौबत आए. या हो सकता है कि आप लोगों के कोई भी जो टसल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए या ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाए. तो एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिलने से मूड ख़राब हो रहा है, तो डोंट एक्सपेक्ट सॉरी. ओके. सो मेरा तो ये मानना है कि सॉरी नहीं कहना चाहिए या कहलवाना चाहिए ज़बरदस्ती, जब तक कि सामने वाले का मन नहीं हो. उसने नहीं कहा लेकिन रियलाइज़ कर लिया, दैट इज़ फार बेटर.